catch this fungus. Okay, and of course this will include COVID-19 patients, recovered cases of COVID-19 cases. Now next comes pulmonary mucormycosis, which is also a very common type of mucormycosis in people with cancer or in people who have had an organ transplant or stem cell transplant. So basically all these types of mucormycosis, rhinocerebral ho, pulmonary ho, gastrointestinal, and it can affect any system of the body, as you can see कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है, क्यूटेनियस भी हो सकता है, where the infection occurs through skin. ठीक है. Disseminated mucormycosis occurs when the infection occurs through the blood stream. तो blood stream से वो सारी body में फैल सकता है. So these are the types of the mucormycosis. So in the context of COVID-19, so basically this is the type of mucormycosis. This is rhinocerebral, which involves the sinus and the brain, is the kind of mucormycosis which is seen frequently in the COVID-19 recovered patients. So this is the type of mucormycosis which is seen, and along with the pulmonary mucormycosis. If we talk about the type of mucormycosis in COVID-19 patients, there are different types of fungi that commonly cause mucormycosis. Examples: Rhizopus ho gaya, mucor species ho gaya, Rhizomucor ho gaya. So there is a whole list of fungi that cause mucormycosis. Now this is very, very important. Symptoms of mucormycosis. This is something very important for you, and this is very something very for you to understand this and watch out for these symptoms and get in touch with your doctor and get yourself evaluated. So what are the symptoms? So the symptoms of mucormycosis depend on where in the body the fungus is growing. Okay? Contact your healthcare provider if you have any symptoms that you think are related to mucormycosis. So basically here I have mainly we'll be talking about the symptoms of rhinocerebral mucormycosis and the pulmonary mucormycosis, because that is relevant in the current scenario. There are different types as well, as mentioned earlier in the session, कि gastrointestinal भी है, cutaneous भी है, skin पे भी होता है. But जो common है, जो current scenario में जो common है, वो है rhinocerebral mucormycosis, which involves your sinuses and brain. इसके early signs and symptoms क्या हैं? Early signs and symptoms हैं vague facial pain and numbness. ठीक है, कोविड आपको हुआ, उसके बाद आपने दवाइयाँ लिया, यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड एंड यू डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, आप बिल्कुल ठीक हैं, एंड सडनली यू स्टार्ट टू हैव वेग फेशियल पेन, आपके फेस पे पेन हो रहा है, कुछ नमनेस होने लग गई है. ठीक है. देन हेडेक, सडन हेडेक, कि सडनली कुछ हेडेक स्टार्ट हो गया. ठीक है. आई में कुछ पेन, रेडनेस, इडीमा, मतलब स्वेलिंग हो जाए आईलिड की, या जो पेरिऑर्बिटल रीजन है आपका, द रीजन अराउंड योर आईज गेट्स swollen up. फिर टोसिस इन मेनी केसेस, द ऑब्वियस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. टोसिस क्या होता है? टोसिस इज बेसिकली ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड. अपर आईलिड के ड्रूपिंग को टोसिस बोलते हैं. नेजल कंजेशन हो गया, या किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा कोई डर्टी या ब्लड टिंज्ड नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, that is also a time that you should be alert. If we can diagnose a patient with these signs except ptosis, then we are likely to get a limited disease. तो ptosis के अलावा, ptosis जो मैंने आपको बताया कि drooping of eyelid, upper eyelid,
इसके अलावा अगर बाकी जो ये सिम्टम्स हैं, इफ यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स, वेग फेशियल पेन, नमनेस वगैरह, हेडेक वगैरह है, आई पेन है, रेडनेस है, एडिमा है, नेजल कंजेशन है, कुछ नेजल डिस्चार्ज है, सो देन यू आर मोर लाइकली टू हैव अ लिमिटेड डिजीज, कि वो लिमिटेड होगा. नाउ विल कम टू द लेट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, जिसमें की है this is also more or less the same kind of symptoms you'll be having, कि headache है, ptosis as I told you, drooping of upper eyelid, chemosis, swelling of conjunctiva, अंदर जो white portion है आपका आई का, उसमें किसी तरह की swelling हो गई है, ophthalmoplegia, जिसका मतलब है कि paralysis और weakness of eye muscles. तो क्या होगा कि आप you would not be able to move your eyes. ठीक है, excessive watering from the eyes, dry dark crusting inside the nose, ठीक है, darkening of skin in patches, dark patches or discoloration over palate, ठीक है. Along with these signs and symptoms, other signs of systemic illness invariably are there. तो मतलब these are the signs and symptoms of mucormycosis along with the other signs of the systemic illness. कि वो systemic illness का मतलब क्या, कि आपके जो existing जो condition है उसके साथ साथ ये सारे symptoms आएंगे. अगर कोविड की बात करें तो कोविड में मतलब आपको फीवर है, कॉफ है, कोल्ड है, वीकनेस है, बॉडी एक है, सो इट इज अदर देन दैट. सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस क्या है? सेम है, फीवर होगा, कॉफ होगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा. these are all signs and symptoms of pulmonary mucormycosis. Now, who gets mucormycosis? Mucormycosis, as I said, that mucor और जो ये molds हैं, these are like present in the environment. तो why don't everyone get it? जब present हैं और सब inhale कर रहे हैं, everyone is inhaling fungal spores in the air. तो why is not everyone getting affected by it? क्यों नहीं affect हो रहे सब लोग? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया सेशन में कि it is mainly affecting the individuals who have depressed, suppressed immune system due to any illness or being on any kind of immunosuppressant therapy. इसमें कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो the ones who are more prone to develop this problem? But before I say this, let me make this very clear to all of you, and let me say this, that this is the list where, you know, it is mentioned कि there's patients with diabetes, patients on prolonged oxygen therapy, या जो भी corticosteroid use करा है, इन सब में ये ज़्यादा chances हैं. But that does not mean that all of the people who have diabetes, who have taken steroid are going to have it. No, बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर I'll tell you later. ठीक है, let's just look at the list कि who are the individuals who are more susceptible, who should be more on the guard, who should be more alert, and watch out for those signs and symptoms which I mentioned, which were mentioned in this list. They should be watching out for those signs and symptoms. ठीक है, इसमें आ जाता है फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस. ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमनली देखा गया है कि द पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज आर द वंस हु आर मोस्ट ससेप्टेबल टू हैव म्यूकरमाइकोसिस. और वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो शुगर्स तब है जब शुगर्स आर कंप्लीटली या तो पहले से ही कंट्रोल में नहीं है, या स्टेरॉइड देने पड़ते हैं इस डिजीज में, उसकी वजह से द शुगर्स गो आउट ऑफ कंट्रोल.
और कंट्रोल में नहीं है शुगर, उसकी वजह से जो है ये म्यूकरमाइकोसिस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को इसको बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी देख के इन्फेक्शन होता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन है एंड द फंगस टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लोअर इम्यून सिस्टम एंड टेक्स ओवर। फिर देन पेशेंट्स हु हैव बीन ऑन प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी, जो लंबे ऑक्सीजन थेरेपी पे रहे हैं किसी वजह से, वो किसी भी वजह से हो सकता है। सीओपीडी के पेशेंट्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी पे रहते हैं, ठीक है। कोविड में हमने देखा कि काफी लोग काफी टाइम तक ऑक्सीजन ले रहे थे, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन मींस कि बाहर से जब हम मशीन लगा के पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, पेशेंट रिसीविंग इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं, लाइक अगर अभी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस कोविड, तो कोविड-19 में टोसिलिजुमैब जो है, दैट इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग व्हिच इज used in severe cases of COVID-19 treatment. So that can also suppress the immunity, and then this makes the patient more susceptible to catch this mucormycosis. Then long-term corticosteroid. स्टेरॉइड से हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। अब तो मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस होती है जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। कैंसर पेशेंट्स में हो सकता है क्योंकि कैंसर में भी द इम्यूनिटी कम्स डाउन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि मैंने ड्यूरिंग द सेशन इन द बिगिनिंग आई मेंशन कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, सो इट इज एनी काइंड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्यों ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद वी गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो इम्यूनोसप्रेसेंट से इट सप्रेसेस द इम्यूनिटी एंड जो है दो पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है म्यूकरमाइकोसिस होने की, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, द सेम रीजन। न्यूट्रोपीनिया, लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो है टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर लेस इन नंबर, तो जब कम होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी उतनी अच्छी तरह से इट कैन नॉट फाइट। और ये भी बेसिकली दिस आल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है। इंजेक्शन ड्रग यूज, स्किन इंजरी ड्यू टू सर्जरी, बर्न्स, वुंड्स, जिसमें कि क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस होता है। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं म्यूकरमाइकोसिस को। डायग्नोसिस के तो फर्स्ट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है, दैट लुकिंग फॉर द साइंस ऑफ द साइंस व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर, कि कोई ब्लैक क्रस्टिंग तो नहीं है इनसाइड द नोज, कहीं ब्लैक पैच तो नहीं है ऑन योर पैलेट, सो दीज आर द साइंस। फिर कोई टोसिस तो नहीं है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड तो नहीं है, फेशियल स्वेलिंग तो नहीं है, पेरिऑर्बिटल एडिमा जो कि स्वेलिंग ऑफ अराउंड द आईज, ऐसा तो नहीं है, कोई फेशियल पैरालिसिस तो नहीं है, कोई नमनेस तो नहीं है। सो दीज आर द दिस कम्स इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन पार्ट। एंड देन जो डायग्नोसिस स्टैब्लिश कैसे करेंगे, क्लिनिकली एग्जामिन किया एंड वी आर सस्पेक्टिंग म्यूकरमाइकोसिस की म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, तो देन कम्स नेजल एंडोस्कोपी, जो कि विच स्टैब्लिशेस द डायग्नोसिस। नेजल एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी बेसिकली काफी लोग जानते भी होंगे, एंडोस्कोपी जैसे गैस्ट्रो एंडोस्कोपी होती है जिसमें एक ट्यूब होती है और दैट इज इंसर्टेड इनसाइड योर नोज एंड देन your sinuses and everything can be visualized under direct vision. If CT is not of much help, even MRI does not give significant findings in the limited disease. Limited disease मतलब कि कम है अगर
डिजीज का इट इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव अगर नहीं है तो फिर सीटी और एमआरआई से भी इतना कुछ खास पता नहीं चलता. कॉन्ट्रास्ट एमआरआई से जो है वो हम पता लगा सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस का. दैट इज ऑल्सो व्हेन यू नो इट इज एक्सटेंसिव. ठीक है. So in extensive disease, contrast MRI helps us in knowing the extent of the disease as well as determining the extent of resection. तो हम basically जो diagnosis establish कर सकते हैं वो है through nasal endoscopy. Or there are other ways also. There is a separate slide for that which I'll be showing at the end of the this file. So management क्या है? Management is of course early and aggressive surgery. Surgery depend करता है कि कितना extensive आपका involvement है म्यूकरमाइकोसिस की वजह से. It will be decided by the surgeon. जो ENT specialist है वो decide करेंगे कि मतलब सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं. वरना ये सिस्टेमिक एंटी फंगल थेरेपी देते हैं जिसमें कि एम्फोटेरिसिन बी का आईवी इन्फ्यूजन देते हैं या फिर ओरल पोसाकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं वो देते हैं. ठीक है. और अलोंग विद दिस स्टेबलाइजेशन ऑफ अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट एंड डिजीज. तो ये सारा कुछ अलोंग विद यू नो स्टेबलाइजिंग द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. सिर्फ म्यूकर को ट्रीट करें ऐसा नहीं है, उसके साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उसके साथ वो ये चीज करेंगे. नाउ ये दिस इज द स्लाइड दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि ये हमारा एक चार्ट सा है. यहाँ पे आप देखेंगे कि यू नो दिस इज द लिस्ट ऑफ द दिस इज एक्चुअली मोर रेलेवेंट टू द COVID-19. The earlier what we discussed in the session was more about mucormycosis in general. कि ठीक है म्यूकरमाइकोसिस क्या है, कितने टाइप के हैं और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं. बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स में भी मैंने आपको जो सेरेब्रल राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताया और पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताया जो कि कॉमन है कोविड-19 में. ठीक है. तो इसमें ये जो स्लाइड है हियर आल्सो it basically talks about the rhino-orbital cerebral mucormycosis which is commonly seen in COVID-19 patients. तो इसमें कौन से who are the individuals who are more prone to developing it? As you can see कि uncontrolled diabetes mellitus जिसमें शुगर कंट्रोल में नहीं है, पहले से भी कंट्रोल में नहीं है और या तो हमने स्टेरॉइड दिया और उसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं है. फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. फिर ट्रीटेड फॉर कोविड-19 विद इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स. जो मैंने बताया कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स होती हैं कुछ, टोसिलिजुमैब हो गया जैसे एग्जांपल के लिए, तो वो जब यूज करते हैं तो उससे भी सप्रेस होती है इम्यूनिटी. फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्सीजन थेरेपी. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द सेशन. जो पहले मैंने आपको बताया उसमें सारी चीजें दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारे इंडिविजुअल्स विल बी मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग म्यूकरमाइकोसिस. ठीक है. अब ये साइंस एंड सिम्टम्स, दिस इज बेसिकली यू नो द सेम थिंग. इट इज जस्ट दैट इट इज यू नो इट इज in a kind of graphic representation and flowchart type का है, so it becomes easier to you know remember. That's why I have kept it in my file. तो इसमें साइंस में आपको पहले ही बताया, फेशियल पेन हो, कोई साइनस हेडेक हो, स्टफी नोज हो, डिक्रीज्ड विजन हो आप. ठीक है. ब्लडी कोई नेजल डिस्चार्ज हो, कोई डेंटल पेन हो, फेशियल स्वेलिंग हो, फेशियल डिस्कलरेशन हो, टोसिस, drooping of eyelid, proptosis मतलब कि eyes, bulging of eyes. ठीक है. restricted eye extraocular movements. इसका मतलब है कि वो आईज की मूवमेंट जो मैंने आपको बताई कि पैरालिसिस हो सकता है आई मसल्स का, उसकी वजह से आप अपने आईज को मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ये
सर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये पैलेटल, फिर नेजल, बेसिकली ब्लैकनेस आपके नेजल नाक के अंदर या फिर यू नो पैलेट के ऊपर तो नहीं है। दिस यू हैव टू वॉच फॉर। एग्जामिनेशन में द डॉक्टर विल सजेस्ट डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ यू कि भाई सीबीसी करना है, उसमें ब्लड टेस्ट करने हैं जिसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, HbA1c करवाएंगे, किडनी टेस्ट करवाएंगे, डीप नेजल स्वॉब करते हैं ग्राम स्टेन के लिए, KOH के लिए, फंगस के लिए, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी कंफर्म्स द डायग्नोसिस। ये दिस विल कंफर्म द डायग्नोसिस कि हाँ भाई आपको म्यूकरमाइकोसिस है। MRI PNS ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के साथ, ये मैंने बताया कि दिस इज एक्चुअली यू नो व्हेन द म्यूकरमाइकोसिस इज एक्सटेंसिव। जब एक्सटेंसिव हो तो उसमें ये बेसिकली हेल्प करता है टू नो द एक्सटेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, कि कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है साइनसेस का, पैरानेजल साइनसेस का, ब्रेन का, ठीक है। CTPNS ये भी बेसिकली फॉर इवैल्यूएशन है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो है वो मेनली 2 ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड, वन इज एम्फोटेरिसिन B और फिर एक पोसाकोनाजोल है जो कि ओरली देते हैं। सो दिस इज ऑल योर डॉक्टर्स कॉल कि वो क्या डिसाइड करते हैं आपके लिए। और फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक्चुअली जितनी जल्दी पता चल जाए उतना लेस अग्रेसिव होगी सर्जरी। जितना ज्यादा लेट डायग्नोसिस होगा the surgery will be more extensive. At times people might have to lose the whole eye, कि पूरी की पूरी आई निकालनी पड़ जाती है, इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो जाता है। कई बार पूरा जॉ निकालना पड़ जाता है डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट। So basically this is not to scare you off by telling this कि इतना कुछ होता है, आई भी निकाल देते हैं, मतलब इस लेवल का एक्सटेंशन हो सकता है। Yes, as I told in the beginning of the session itself that it is a very serious fungal infection, but we have to always remember कि serious है, mortality rate भी बहुत ज़्यादा है, और silently it happens, or if the early diagnosis is not done, if the early intervention is not done, the disease is very 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 fatal. So but this does not mean that we need to panic, ठीक है। तो ये था म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। अब हम let's discuss about it. We'll take. Madam, doctor, I want to ask you one thing. Just give me 1 minute, ma'am. Hello. ठीक है। अब हम बात करेंगे कि COVID-19 में म्यूकरमाइकोसिस क्यों हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो COVID-19 में म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके लिए एक्चुअली आई विल टेल यू फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी एज डॉक्टर्स, वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग फेज ऑफ दिस डिजीज, इन द सेंस कि why it is happening in COVID-19 patients, कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वी आर स्टिल इन द लर्निंग फेज, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिजीज है, द डिजीज इज सच कि हमें स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, शुगर्स बढ़ जाती हैं, उसके बाद देयर आर चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक म्यूकरमाइकोसिस। सेकेंड चीज है कि ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट रहता है, एंड उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन जब हम यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहे हैं या सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो व्हेन वी टेक ऑक्सीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, तो देन वी कैन जस्ट यूज नेजल प्रॉन्ग्स या फेस मास्क लगा के हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती है।
बट हमें इफ वी आर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट हैज टू बी ह्यूमिडिफाई करके लेना होता है ऑक्सीजन को. अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन को लेंगे इट विल ड्राई योर नोज एंड एयर पैसेज, और वो लॉन्ग टर्म जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं यूज करते, ह्यूमिडिफाई करते हैं उसको. तो या तो हमारे जो कॉन्सेंट्रेटर्स आते हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम हैव इनबिल्ट ह्यूमिडिफायर, जो ह्यूमिडिफाई करके ही डिलीवर करते हैं. कुछ में है जो सिलेंडर, व्हेन यू आर यूजिंग द सिलेंडर, तो फिर हमें वी हैव टू यूज द ह्यूमिडिफायर. और फिर वहां पे जो चीज करनी है हमें वो ये करनी है कि जो ह्यूमिडिफायर है उसका जो हम इट हैज टू बी क्लीन्ड, and it has to be cleaned daily ideally, but at least in 3 days हम उसको क्लीन करें अच्छे से, सोप से, वाटर से उसको क्लीन करें, उसको ड्राई करें. और उसको जो वी शुड ऑलवेज यूज डिस्टिल्ड वाटर फॉर फिलिंग दैट ह्यूमिडिफायर इंस्टेड ऑफ टैप वाटर. और स्टेराइल वाटर भी यूज कर सकते हैं. That will be safer than of course a tap water, but ideally तो distilled water use करना चाहिए, but sterile water भी use कर सकते हैं, but definitely not tap water, क्योंकि tap water में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और फिर उसके बाद फिर निमोनिया डेवलप हो सकता है. उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन के ये ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि स्टेरॉइड की भी बात करें तो स्टेरॉइड्स हम काफी देयर आर मेनी डिजीजेस इन विच स्टेरॉइड्स आर यूज्ड, और काफी लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं. आर्थराइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं वेयर वी यूज स्टेरॉइड्स. बट देयर वी haven't seen many patients with mucormycosis कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हो गया. डॉक्टर, कैन आई जस्ट टॉक टू यू 1 मिनट? Just 1 minute. Ma'am, let me just finish and then we okay. can have. No problem. Let me just finish. तो I was saying कि स्टेरॉइड्स को हम कह रहे हैं कि भाई स्टेरॉइड यूज करने से, यस, स्टेरॉइड का जुडिशियल यूज होना चाहिए. जो ये रैम्पेंटली जितने यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड्स हम कोविड-19 में, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ समटाइम्स सेल्फ मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, एंड समटाइम्स फिजिशियंस की वजह से भी हो रहा है, बिकॉज द डिजीज इज न्यू एंड द डिफरेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं वो रिवाइज होते रहती हैं, चेंज होती रहती हैं. तो उसकी वजह से भी एट टाइम्स देयर इज सम मिस इन्फॉर्मेशन, और उसकी वजह से भी स्टेरॉइड्स का जो जुडिशियल यूज होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है. ठीक, बट हम सिर्फ स्टेरॉइड को ब्लेम करें ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड का भी अपना रोल है और स्टेरॉइड्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स. तो ये कहना कि स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत सारी डिजीजेस में और भी यूज कर रहे हैं. तो फिर वहां पे क्यों नहीं हो रहा म्यूकोरमाइकोसिस? ऑक्सीजन को भी सिर्फ ऑक्सीजन, लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्सीजन थेरेपी को ब्लेम करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं. देयर आर पेशेंट्स के जो कि सीओपीडी के पेशेंट्स हैं जो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन थेरेपी पे रहते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है दैट ऑल ऑफ देम आर डेवलपिंग म्यूकोरमाइकोसिस. सो एक कॉन्सेप्ट, वन कॉन्सेप्ट इज दैट कि भाई जो ये क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 जो, सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ये स्टेरॉइड, ये लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, दिस इज ऑल एडिंग टू इट, कि भाई उसकी ऐड कर रहा है और ज्यादा. It is actually helping the fungus to grow, but ऐसा नहीं है कि this is the only cause. ठीक है, the COVID-19, the disease itself is such कि we are still learning कि ये कैसे affect कर रहा है सबको, हम सबको. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि भाई क्लॉटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. So that can also be one of the causes कि जिसकी वजह से ये जो ये
आ जाता है कि सर्जरी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है? बेसिकली द टिश्यू बिकम्स वो डेड टिश्यू बन जाता है, उसको फिर निकालना ही पड़ता है. तो दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ lack of blood supply to that tissue. That can happen because of that also. तो ये भी एक चीज है कि कोविड-19 अपने आप में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से, ये क्लॉटिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है, not just because of use of steroids or long standing oxygen therapy. तो इसको हम कैसे मतलब इससे हम कैसे इसको कैसे प्रिवेंट करें, क्या कर सकते हैं इस बारे में? तो मैं आपको इस स्लाइड में ही है, मैं दिखाती हूँ आपको. देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वुड वांट यू टू गो थ्रू. So please get blood sugar estimation and HbA1c in all patients who are diagnosed with COVID-19. ठीक है. A strict protocol should be followed for steroid use in COVID-19 patients. जो मैं बात कर रही थी कि judicial use होना चाहिए, ठीक है, and वो self medicate नहीं करें, अपने physician को let the physician decide कि कब steroid शुरू करना है, कितने डोज पे शुरू करना है और कब बंद करना है, ठीक है. Strict sugar monitoring for diabetic patients. This is very important, क्योंकि हमने बात करी कि सबसे ज्यादा जो है डायबिटीज के पेशेंट्स में ही ये देखा गया है. Keep a watch on the diabetic control and steroid use in post discharge patients also. ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, स्टेरॉइड्स पे डिस्चार्ज हो गया, लेकिन we have to keep a close watch on the patient कि स्टेरॉइड कब तक लेना है, कितनी डोज पे लेना है, और शुगर की चार्टिंग होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट जो है शुगर मेडिसिन्स चलनी चाहिए, इंसुलिन चलनी चाहिए, सो दैट द शुगर्स रिमेन अंडर कंट्रोल इवन पोस्ट डिस्चार्ज. ठीक है. सेलाइन नेजल ड्रॉप्स, नेजल इरिगेशन स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स. ठीक है. Surveillance of hygiene of all equipment used for oxygen and air delivery. जो ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, वो उनका जो है वो हाइजीन सर्वेलेंस होना चाहिए. पेशेंट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, जो कि हम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, मेकिंग यू अवेयर अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, बिकॉज दिस इज योर पार्ट. ये आपका पार्ट है जहाँ पे ये साइंस एंड सिम्टम्स आप कैच कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट इन टच विद योर ट्रीटिंग फिजिशियन की भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है एंड व्हाट शुड आई डू, एंड द फिजिशियन विल टेक ओवर फ्रॉम देयर. देन ही विल गाइड यू कि भाई क्या करना है, एंड इफ एट ऑल he suspects mucormycosis या उसको लगता है, then he might ask you for an ENT or ophthalmology consult. The staff and different specialists involved in COVID-19 care should be aware of the early signs like facial pain. ये सारा उन लोगों के लिए जो hospitalized हैं, उसमें भाई पैरामेडिकल जो स्टाफ जो उनको देख रहा है, they should also be aware of these signs and symptoms and bring it to the notice of the treating doctor. Early ENT consultation for nasal symptoms. ठीक है. तो ये आप अपने पहले ट्रीटिंग फिजिशियन से जब कंसल्ट करेंगे तो देन ही एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही माइट आस्क फॉर अ ENT कंसल्ट और ऑफ्थेल कंसल्ट कराने के लिए बोल सकते हैं. ठीक है. वन सस्पेक्टेड क्विक इन्वेस्टिगेशंस विद नेजल एंडोस्कोपी और कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड MRI. एक बार सस्पेक्ट किया कि म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है तो बिल्कुल immediately investigation सारे होना, एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी कराना. दिस इज इम्पोर्टेंट. जितनी जल्दी हम उसको कैच कर लें और उस पर एक्ट करें. अग्रेसिव सर्जरी एट द अर्लीस्ट, ये सेम चीज है. इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन B to be started immediately. ठीक है.
और how to disinfect the oxygen humidifier, that I have already explained you कि कैसे करना है और वो चीज करनी है. ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, उसके साइंस एंड सिम्टम्स. तो बेसिकली रेलेवेंट आपके लिए क्या है इस चीज इस सेशन में, वो ये है कि साइंस एंड सिम्टम्स को समझना और उस पर इमीडिएटली एक्ट करना एंड टू ब्रिंग इट टू नोटिस टू योर ट्रीटिंग डॉक्टर. ये आपका रोल है. दूसरा रोल आपका क्या है कि आपको अपनी इम्यूनिटी कैसे अच्छी रखनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है. वो सारी दोज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वी हैव डिस्कस्ड इट ड्यूरिंग ऑल ऑफ आवर सेशंस कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखना है. ठीक है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट रखना है. ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, एक्टिव रहना है, वॉक करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं. सो दीज आर द थिंग्स दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस. ठीक है, ओके. सो नाउ आई एम ओपन टू द क्वेरीज. I want please to take ask one by thing, one. doctor. Please mute yourself and ask. I want to ask one thing, doctor. नाम बताइए मैम. मेरा नाम मिसेस परवीन कुमार है जी. मिसेस परवीन, हाँ जी मैडम बताइए. डॉक्टर, ये मैं आपसे पता करना चाह रही थी कि आपने साइनसेस का बोला है. हाँ. तो साइनस तो किसी को भी हो जाता है, तो उसमें क्या और साइन होने चाहिए? आपको कोविड तो नहीं है लेकिन साइनस है, लाइक आई हैव साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है. हाँ, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है. तो मैम आपको अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, हाँ जी, इस समय थोड़ी है. हाँ, एग्जिस्टिंग है, तो इनफैक्ट यू शुड गो फॉर एन ENT कंसल्ट. नहीं, I talked to ENT. He asked me the question कि आपको बुखार है या रनिंग में, तो वो मुझे कुछ भी नहीं है. No other symptoms. Only thing is कि मेरा जो नोज का अंदर का ये मेम्ब्रेन है वो बहुत तेज, उसको हिट मैंने लगाया था तो उससे हिट हो गया अंदर, तो इट हैज गॉट. तो मेरे यहाँ पे थोड़ा वो रहता है, दर्द है हल्की हल्की, और एक यहाँ पे टॉन्सिल में है. बस ये सब. क्या आपको एलर्जी हो गया है इसका? तो ही इज ट्रीटिंग मी विद द एलर्जी. मैम मैंने आपको पहले बताया, ये सेशन में ही वी डिस्कस द साइंस एंड सिम्टम्स कि कोई ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, कोई आप अंदर कोई ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं है. नजर तो नहीं आ सकते, पर आई डोंट थिंक देयर आर ब्लैक स्पॉट्स, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो जाता है ना जब आपको थोड़ा सा भी साइनस आपका डिस्टर्ब होता है, तो कभी आपकी यहाँ पे थोड़ी that's where the doctor's intervention comes ना मैम. That's why I said कि आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से इस बारे में करी तो है बात. बस I'm just मेरे को वैसे कोई चोर नहीं, कोई बुखार नहीं है, कोई और कोई भी सिम्टम नहीं. तो as I said कि इसमें बुखार होना जरूरी नहीं है. अच्छा, ये तो कोविड होने के 1 महीने बाद भी हो रहा है. I never had COVID, touch wood. I had nothing. ठीक है. हाँ जी. One minute, मैडम, मैं कहना ही just ask. मेरे को मैडम कोविड नहीं था, मैंने दोनों इंजेक्शन भी ले लिए हैं. बट तो अभी आप बताइए कि what should I do? I have already consulted the doctor. So you have already consulted an ENT specialist. So I think you should just follow his advice. फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं. वो सलाइन वाटर डालिए और कुछ वो. हाँ, तो फिर हाँ, you can just continue with the same. फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है. तो उससे गले में जो ये दर्द उसी की वजह से ही है, तो it will go off with it. मैं वही बता रही हूँ आपको. आपने तो ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर ही लिया ना, तो उन्होंने आपको जो बताया है ना, आप उसको फॉलो करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक. हाँ, ओके मैम. नेक्स्ट प्लीज अपना नाम बताएंगे मैम. आई एम पवन. हेलो. आई एम पवन कुमार. डॉक्टर. हाँ जी मिस्टर पवन, हाँ जी बताइए. डॉक्टर, दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू कोविड. My mother, she is 92. She is having high BP, 190 and 80 for last 2 days. We don't want to go out to consult the doctor.
So she is sir, stating. I'm really sorry, but actually this session is about mucormycosis, so I would like to take the queries relating to the same. Okay. Thank you. Ma'am, can I sir, please जो can I just mucormycosis से related कोई query है तो please पूछिए. Ma'am, Dr. Sunita, I want to clear my doubt. I want to clear my doubt. How come? मैम please नाम बताएंगे. नाम बताएंगे. मैम, मेरा नाम रंजना है. मैंने बीच में आपसे बात की थी तो आपने कहा आप थोड़ी देर बात करें. मैं एक इसी से रिलेटेड पूछ रही हूँ. मैंने आर्टिकल पढ़ा था परसों, इसमें आया था क्या कहते हैं पूना न्यूज में, कि जो लोग घरों में फ्रिज रखते हैं और फ्रिज में काफी दिन का खाना पड़ा रहता है, उसमें भी फंगस आ जाती है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आजकल, ताकि कोविड का मतलब टाइम चल रहा है तो फ्रिज का खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए. वो जो ब्लैक फंगस फूड में जैसे कोई जैम पड़ा हो, जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट फॉर कोविड टाइम्स. वो हमारे लिए इट इज एप्लीकेबल for all the times. And they have also said that there is a aqua guard and all that. There also it's not 100%, and you need to not do it only 3 months. You need to do it every month because it also carries fungus. Is that true? मैम, मैंने जैसा कि आपको बताया सेशन में कि ये फंगस जो है इट इज प्रेजेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. ओके, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे ये फंगस डिसअपियर हो जाए. ये तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है. जी. तो मैं यही समझाया मैंने सेशन में कि ये उन्हीं को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है किसी भी वजह से, किसी डिजीज की वजह से, या कोई दवाइयां वो वैसी ले रहे हैं जिसकी वजह से द इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड, द इम्यूनिटी इज डाउन. So this virus attacks those individuals, the ones who have weak immune system. उनको अफेक्ट करते हैं. जो नॉर्मल हेल्दी, जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, उनको अफेक्ट नहीं करता है. जी. Thank you so much, doctor. Can I ask you something? I have some queries. और एक दो चीजें और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि just because you had taken steroid for some time does not mean कि आपको ये म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा. Can I put a question? Yes. Your name is Last time you said ये तो पहले भी, but today I have come to know that after COVID-19 only अभी गए हैं हमको. पहले ब्लैक फंगस के बारे में तो कभी नहीं सुने थे. तो लास्ट टाइम बोला था पहले भी था ये तो. जी हाँ, सही बात है. ये सही बात है कि पहले भी था. ठीक है. अभी इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है. वो इसलिए भी हो रहा है कि इतने मतलब मास लेवल पे हम स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, इतने मास लेवल पे हम सबको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं. और because of all this chaos or madness going on, there are many people who are not under strict supervision कि वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, but they are not being strictly supervised as they should be. कि डायबिटिक है, स्टेरॉइड्स हैं जिनका कि कोई स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं हो रहा है. पेशेंट डिस्चार्ज हो जा रहे हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद जो है कई बार जो है अर्ली डिस्चार्ज कर रहे हैं पेशेंट को बिकॉज अवेलेबिलिटी बेड की कम है. हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं पेशेंट को. पेशेंट के घर पे उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए. ठीक है. तो वो भी दैट इज ऑल्सो एडिंग टू इट. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. This is what I wanted to ask doctor. Why और इतने मास लेवल पे स्टेरॉइड्स हमें पहले नहीं यूज करने पड़ रहे थे. इतने मास लेवल पे हम यूज नहीं कर रहे थे स्टेरॉइड अगर यूज भी कर रहे थे सर्टेन कंडीशंस में कर रहे थे. कुछ लोगों के लिए कर रहे थे, आर्थराइटिस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है,
सर्टेन कंडीशंस के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे मास लेवल पे यूज कर रहे हैं, हर लगभग हर पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन थेरेपी की बात कर रहे हैं तो अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। हम कितना जानते थे कि कितने लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, एंड राइट नाउ व्हाट द सिचुएशन इज कि हर तीसरे चौथे पांचवें बंदे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जा रही है, ठीक है। तो इट इज सर्टेनली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ रीजन दैट द केसेस आर मोर, कि आज की डेट में ये ज्यादा हो रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। और एज आई टोल्ड यू कि भाई जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वी आर ऑल इन द लर्निंग फेज ऑफ द डिजीज। ये हमारे लिए भी नया है। तो अगर म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट कि क्यों हो रहा है। तो जो हमने बात की भाई स्टेरॉइड से इम्यूनिटी सप्रेस होती है, ऑक्सीजन थेरेपी पे जो होते हैं मेन ह्यूमिडिफायर में कई बार टैप वाटर डाल के यूज कर लेते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। बट फिर वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, अदर फैक्टर्स ऑल्सो टू बी लुक्ड इनटू कि भाई मतलब ये डिजीज की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। मतलब होता है ना कि जो ये क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम की वजह से तो ये सारी चीजें नहीं हो रही कि ये जो डेड टिश्यू हो जा रहा है। यू अंडरस्टैंड, हर टिश्यू का हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही है, थ्रू द कैपिलरीज। सारे टिश्यूज को हमारे ब्लड सप्लाई मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। वहां पे कोई क्लॉट अगर आ जाता है तो the capillaries, the artery gets obstructed, the blood supply is compromised, oxygen supply is compromised, तो जिसकी वजह से ये dead tissue होता है। तो is it that it is happening because of clotting कि ये dead tissue हो रहा है, and the fungus is superimposed infection। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। तो सिर्फ एक चीज को एट्रीब्यूट कर पाना आज की डेट में कि ये स्टेरॉइड की वजह से ही हो रहा है या ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम इस टाइम पे। डॉक्टर साहब, मे आई आस्क अ क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन। योर नेम प्लीज? आई एम प्रवीणा. What I want to ask is this contagious from person to person? No, it is not contagious. It is not contagious. ये contagious नहीं है, ठीक है? Contagious नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए problematic है जिनका immune system compromised। And second question, आपने कहा था कि if there's a, तो उसका क्या relationship हो सकता है with this fungus infection? नहीं, come again, कट हो जाए स्किन में या कुछ हो जाए, चोट लग जाए, हाँ, तो उसके मतलब उसके थ्रू एंट्री मिल सकती है ना। आप वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वो तो कहीं भी इफ देयर इज एनी ब्रेक इन द स्किन तो वो उसको एंट्री मिल सकती है वहां से। तो वेनियस बस वही है। थैंक यू डॉक्टर। मैं सुदेश बोल रही हूँ। ask you one question? Yes, please. Your name, please. I'm Swarnashri Bhattacharya. हाँ जी मैम। I'm just sometimes I surprised that why it is only in India. In other countries they are also having this, but I have never heard that it is black fungus happening in other countries. Why it is specifically in India? इंडिया में मैम बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से भी ये केओस क्रिएट हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं मिल रही, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो एक रीजन तो वो है। दूसरा है कि वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सस्टेन दिस डिजीज और कंटेन दिस डिजीज। जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की और सुपरविजन की, तो कितने लोग करा पाते हैं? नहीं करा पाते। अगर इंडिया में बात करें कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, और आप बात करेंगे इन द डेवलप्ड कंट्री, द रेशियो इज लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज डिस्पैरिटी। एक डेवलप्ड कंट्री में पर 1000 पॉपुलेशन नंबर ऑफ डॉक्टर कितने हैं, और इंडिया में बात करें तो कितने हैं। तो ये सारी भी रीजंस हैं कि ये नहीं हो रहा।
my nephew who is very young and he has sugar, he went to Apollo and they discharged him. He came negative. Then after 2-3 days, he has gone admitted there because of black fungus, and he is hardly 40-45. And it is surprising. Apollo Hospital is a good hospital, and he came back negative. But again, this problem has arise. And another thing, I have a question. My husband had COPD pulmonology problem, and he is taking steroid from 2012. So 9 years, it is the 9th year he is having steroid. नहीं, मैंने मैम यही बात प्लीज यही बात मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड्स जो है, जो स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेरॉइड्स तो फिर बहुत सारे टाइम से यूज कर रहे हैं ना, बहुत सारे कंडीशंस में यूज करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को सबको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड कि सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी और सिर्फ स्टेरॉइड्स को ब्लेम करना will not be a wise thing at this time. There is a lot of research going on into this, and this is not the time to conclude कि भाई इसका रीजन यही है। We are still in the learning phase कि हम समझे इस चीज को क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब, ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स और मैम मैं एक्चुअली अब टाइम काफी कम रह गया है, तो मैं अब एक बार एक्चुअली बात करना चाहूंगी कि आप सबको क्या करना है। ओके, ठीक है, आप सबको क्या करना है कि कैसे इससे बचना है, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो मैंने आपको बताया और जो भी स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, दिस यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे देखेंगे, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ मैं बताऊंगी आपको, बट हाँ, ये जो प्रिवेंशन कैसे करना है, इससे बचना कैसे है, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रिवेंशन स्टेप का क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो हम जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ तब से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो जनरल गाइडलाइंस हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कोविड-19 से बचने के, ठीक है। तो वो चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तो वहीं पे हो जाता है कि आपको कोविड से बचना है पहले तो, ठीक है। कोविड से बचने के लिए क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब सबको पता है। बस ये है कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। दूसरी चीज, सेकेंड स्टेप, ये मैं म्यूकोरमाइकोसिस की बात नहीं कर रही, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस आएगा बाद में। पहले तो हम अगर पहले से ही अलर्ट हो जाए, हमें कोविड नहीं हुआ, तो क्या करना है? कोविड से बचने के लिए जो गाइडलाइंस बने हैं, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वी हैव टू फॉलो दैट। वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड, हम वैक्सीनेट हो, ताकि अगर हमें कोविड होता भी है तो माइल्ड फॉर्म का कोविड हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि हमें कोविड हो जाता है तब, तो क्या करना है आपको? यू हैव टू कीप अ टाइमलाइन ऑफ योर डिजीज क्लियर। आपको साइंस, सिम्टम्स सारे सबको पता है। आज की डेट में 1.5 साल से हम सुन रहे हैं ये चीज, ये फीवर है, ये है, वो है, लूज मोशंस भी हो रहा है लोगों को, आपको सबको पता है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप अ टाइमलाइन ऑफ योर डिजीज कि भाई हुआ, यू हैव टू कंसल्ट योर ट्रीटिंग डॉक्टर, उनसे ट्रीटमेंट लेना है और उनके गाइडेंस में रहना है। स्टेरॉइड तभी स्टार्ट करना है व्हेन द डॉक्टर एडवाइसेस एंड इन द डोसेज दैट द डॉक्टर एडवाइसेस, ठीक है। कुछ ब्लड थिनर्स पे स्टार्ट करेंगे तो वो ब्लड थिनर्स लेने हैं। एट टाइम्स पीपल, आई हैव सीन फ्यू पीपल बिकमिंग वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट स्टार्टिंग विद स्टेरॉइड्स, being very apprehensive about starting on blood thinners कि अरे नहीं, स्टेरॉइड के तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ब्लड थिनर्स के तो ये। तो आपको ये समझना जरूरी है कि sometimes steroids are required and steroids are life-saving drugs. Especially in this pandemic, they have actually played the role of life-saving drug. उन्होंने बहुत सारी लाइफ सेव करी हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स जरूरी हैं। बस जरूरी क्या है कि हम एक डॉक्टर के एडवाइस पे स्टेरॉइड्स लें, उसके सुपरविजन में स्टेरॉइड लें, और
फिर जो डायबिटिक्स हैं वो अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करें. इनफैक्ट जो डायबिटिक्स नहीं भी हैं, दे शुड आल्सो मॉनिटर देयर शुगर. की स्टेरॉइड ले रहे हैं अगर लंबे टाइम तक के लिए, वीक, एक हफ्ते 10 दिन तक स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो अपना शुगर्स वगैरह चेक करें. तो इफ वी गो बाय प्रोटोकॉल्स, इफ वी गो बाय स्टेप, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये प्रॉब्लम नहीं आए, उससे बचने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है. ठीक है. और जो उसके बाद आता है कि आप कोविड से रिकवरी हो गई और उसके बाद आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो चीजें मैंने आपको बताई जो इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं इस प्रॉब्लम के. ठीक है. जो कि इस सेशन में डिस्कस किया मैंने, वो उन पे वॉच रखना है आपको. एज सुन एज यू सी एनी ऑफ दोज साइंस एंड सिम्टम्स, गेट इन टच विद योर डॉक्टर और उनकी एडवाइस फॉलो करिए. यही करना है आपको अपनी साइड से, क्योंकि अगर होगा उसके बाद तो फिर तो द डॉक्टर विल हैव टू ट्रीट यू. वो आप उनके सुपरविजन में होंगे और वो आपको ट्रीट करेंगे. So what is important here is that you should be aware of what your role in this. What is your role in this? कि आपको क्या करना है. ठीक है. और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. और अगर सही टाइम पे इंटरवेंशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता. Doctor, can I ask a question? Your name, ma'am, please. Rashmi. Oh, hi, Mrs. Rashmi. बोलिए, please. Doctor, there are two things I want to ask. एक, I was not very clear on the symptom of वो eyelids वाला जो आपने बताया. eyelids का मैं बताती हूँ मैम. eyelids का टोसिस बोलते हैं उसको, टोसिस उसमें लिखा हुआ था. एंड उसकी साइड में मैंने लिखा भी था कि drooping of upper eyelid. So what does this really mean? Drooping of upper eyelid मतलब जो आपकी जो eyeball है ना, black. So the upper eyelid will be drooping, as in covering the eyes. Okay. And second question is, doctor, that has this fungal thing to anything to do with anybody has Candida B infection? Has it any correlation? Candida infection. Candida infection is different, and mucormycosis is different. Both are fungus, but different fungus. What I'm saying is that if one develops that by chance, can that be? No. It does not mean that someone, if someone is having candidiasis, will have mucormycosis. No. Okay. Thank you, doctor. Thank you so much. Dr. Vinita, they say that even these masks are responsible for the growth of this black fungus because they collect moisture and moisture, ma'am. तो अगर हम मास्क की बात करें तो how we are using the mask, that becomes important. आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, दैट इज अ डिस्पोजेबल मास्क. आपको एट द एंड ऑफ द डे उसको डिस्कार्ड करना है. अगर आपको बार बार उसको रीयूज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी. So that surgical mask should be disposed of. मास्क जो है, सर्जिकल मास्क जो है वो डिस्पोजेबल है, उसको डिस्पोज करना है. आप जो डबल लेयर जो क्लॉथ मास्क यूज करते हैं उसको एवरीडे वॉश करना है. और इनफैक्ट समर्स में जो है, समर्स में भी स्वेट मोर, तो ऑफ कोर्स स्वेटिंग ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो फंगस ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो देन यू शुड बी चेंजिंग इट 2-3 टाइम्स इन अ डे. कि आपको लग रहा है कि मास्क सॉइल हो रहा है स्वेटिंग से, तो आप चेंज करिए. आप यूज अनदर मास्क, उसको फिर वॉश करिए. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू. और बाकी जो लोग ऑक्सीजन पे हैं, जो लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, कॉन्सेंट्रेटर पे हैं, उनके लिए मैंने बताया कि क्या करना है. सिलेंडर है तो सिलेंडर के जो ह्यूमिडिफायर है उसको क्लीन करना है सोप एंड वाटर से, उसको रिंस करके, उसको एयर ड्राई करके, और उसके बाद फिर यू हैव टू फिल इट विद डिस्टिल्ड वाटर और स्टेराइल वाटर, नॉट विद टैप वाटर. एंड दिस शुड बी डन डेली. इफ नॉट डेली देन एटलीस्ट इन 3 days. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटर में देयर इज अ फिल्टर होता है, उसको आप फिल्टर को क्लीन करके, उसको एयर ड्राई करके
and then you can put it in a alcoholic sanitizer वगैरह से sanitize करके, dry करके, and then you replace it, the filter, because that is a reusable filter, but that has to be cleaned. तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप अपनी साइड से कर सकते हैं आप. हमारे एयर कंडीशनर्स के लिए भी वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके फिल्टर्स वगैरह सारे हमें साफ करने चाहिए, उनमें भी तो बिल्कुल 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 करना चाहिए. पर मैम एक सरप्राइजिंग बात तो है कि लास्ट ईयर भी इतने, बट आपको मैम मैं बता दूं, इसीलिए बार बार मैं इस चीज पे इंसिस्ट कर रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं, फ्रिज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसी की बात कर रहे हैं, ये सारी बात कर रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. आपने एसी क्लीन कर दिया, आपने फ्रिज क्लीन कर दिया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये फंगस नहीं है, ये तो एनवायरनमेंट में है ना. तो अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है तो ये दिस वायरस विल टेक ओवर, और चांसेस हैं कि हो सकता है. तो आपको अब बेसिकली अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है. और बेस्ट जो है वो प्रिवेंशन है कि आप कैसे, आप कोविड आपको हो ना, उससे बचना है. कोविड हो जाए तो कैसे भी टाइमलाइन फॉलो करके डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, और उसके बाद जब रिकवर कर जाते हैं तो देन यू हैव टू वॉच आउट फॉर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ mucormycosis which we discussed, and as soon as you notice those signs and symptoms, you get in touch with the treating doctor. बस आपको इतना करना है. ओके, थैंक यू. डॉक्टर, एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट में है, घर में 100 चीजें होती हैं कि कोई धूप में सुखानी है, खाने की है, तो रखनी चाहिए या नहीं, ये मुझे बताइए. मैम रखनी चाहिए. मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि ये एनवायरनमेंट में है, इसका कुछ कर नहीं सकते. अच्छा, नहीं. हाँ. जैसे भी धूप किसी चीज को लगवानी हो, खाने की चीज को, तो रख सकते हैं कि नहीं? तो रख सकते हैं. Okay. रख सकते हैं. ओके. बात ये है, अगर आप ससेप्टेबल हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है किसी भी रीजन से, तो आपको हो सकता है. और अगर हो सकता है तो आपको क्या करना है कि यही जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको वॉच करना है, और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है. ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए, now it's time for me to close the session. ठीक है. I hope कि आपके कुछ जो डाउट्स म्यूकोरमाइकोसिस को लेके उसमें कुछ क्लैरिटी आई. और डॉक्टर, आई वांट टू आस्क यू, साइनसाइटिस में ये एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं मैम साइनोसाइटिस के लिए. अगर एक्टिव साइनोसाइटिस है तो फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं. अजिथ्रोमाइसिन ना? मैम वो कोई जरूरी नहीं है कि अजिथ्रोमाइसिन ही हो, मतलब दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर ट्रीटिंग डॉक्टर कि वो कौन सी एंटीबायोटिक देना चाहेंगे, और आपको और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे हैं. ओके एवरीवन, सो आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं. नेक्स्ट टाइम भी I'll be ready to take on your queries regarding the same. ठीक है. आप में से किसी को भी म्यूकोरमाइकोसिस को लेके कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है. Dr. Vinita, can a non-COVID patient who has a low immunity be attacked by this black fungus? Yes, non-COVID patient. Absolutely. मैंने आपको स्टार्टिंग में, ये सेशन के स्टार्टिंग में ही जो आपको फाइल दिखाई, उसमें मैंने दिखाया था आपको कि it is not that's why I started this session in general for mucormycosis, not for just COVID, क्योंकि mucormycosis का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोविड पेशेंट्स में होता है ये. ठीक है. उसमें आपने देखा होगा किसी की भी इम्यूनिटी जिसकी लो हो, किसी भी रीजन से, कैंसर पेशेंट हो सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ तो होता है जिन पेशेंट्स को, वो हो सकते हैं, उन सबको भी हो सकता है. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिसकी भी इम्यूनिटी लो हो उनको हो सकता है. ठीक है. ओके एवरीवन, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और अपना ख्याल रखिए. और बिल्कुल ये सेशन म्यूकोरमाइकोसिस पे था, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए,
किसी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आप भी अपना ख्याल रखिए प्लीज। ओके नहीं, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। गुड। I take care of myself very well because I believe in practicing what I preach. कि अगर मैं ये कहती हूँ अपने एल्डर्स को कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और वॉक करना चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, आई मेक श्योर दैट आई डू इट माई सेल्फ। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी टेलिंग यू कि आपको ये सब करना चाहिए। बिकॉज़ वी आर कंसर्न्ड एंड वरीड। हमारे सौम्यजीत को भी आप एडवाइस करिए ना ऐसा। ये सौम्यजीत को भी मैं एडवाइस तो करती हूँ, फॉलो उनको करना है जैसे मैं आप सबको करती हूँ, और फॉलो तो आप ही को करना होता है। सौम्यजीत के जब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि probably he is not giving due attention to himself। नहीं तो फिर मेरी बात सुनेंगे फिर, क्योंकि जो सबकी बात अपने अपने घर वालों की कोई नहीं सुनता है। ऐसे भी मेरे अपने घर वाले ही, मैं डॉक्टर हूँ फिर भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर कोई और डॉक्टर उन्हें कुछ बोल देता है तो वो मान लेते हैं। तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रही हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए अच्छे से, और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर।